Hi, Nalin. We'll just give it another couple of minutes. Professor Rehan Kansoori. Oh, hello, sir. Good afternoon. How are you doing today, sir? Fine, thank you. Nice. I think we should perhaps begin then. Okay. Sure. Thank you, sir, for joining us. Thank you, Nalin, for joining us today. A very good afternoon to all our students who have joined us on DSU's first National Startup Day. We welcome all of you today to this webinar session where we're going to celebrate the themes behind being a startup. We have interesting bunch of speakers lined for you, and we hope you enjoy those sessions. Just in terms of some facts, I thought which is always interesting to share. India has the third largest startup ecosystem today after US and China. In fact, as per the DPIIT, which is India's leading data sourcing platform for startups, we have about 84,000 plus startups that are registered on the platform, which I think says a lot. There are 5 states as of today which are accounting for bulk of the startups, which is Maharashtra, Karnataka, Delhi, UP, and Gujarat. What's fascinating is that Delhi, being a union territory, is high up in terms of the number of startups it has. Delhi has about 9,000 odd startups as of today, whereas Maharashtra is leading with about 15,000 startups, which is given, which is, I think, a tremendous number. Just tells us about the ecosystem that exists here in Delhi and the amazing and enterprising entrepreneurs who are here. Another, I think, interesting statistic is that India has about 108 unicorns as of today. 44 of these were set up, became unicorns in the year 2021, and 21 became in the year 2022. Interesting terms to know are gazelles and cheetahs. A gazelle is a startup that is expected to turn a unicorn in 2 years, and a cheetah is expected to become a unicorn in the next 4 years. So, as per another statistic, we have about 51 gazelles and 71 cheetahs. So, I think we have lots to look forward to in our in India in terms of the startup space. So, with that, I'd like to welcome Professor Rehan Kansoori. Sir, we would really appreciate it if you could share some words with our students today, and then we'll move on to Mr. Nalin Savara, our first speaker for the day. Thank you. Thank you very much, Ambika. Today's speaker, Mr. Nalin Savara, Ms. Ambika, other DICE members, students, budding entrepreneurs, and the future of the country. Very good afternoon to all of you. It is indeed my pleasure and privilege to be part of DSU's first event on National Startup Day. And this is also India's first National Startup Day. I remember when I was in college, almost in 1990, I also attended one entrepreneurship development program that was organized by National Small Industries Corporation for 2 days. Since then, whenever I participate, I interact with any entrepreneur or any entrepreneurial program or any such kind of activity, always that program comes to my mind and it gives me another feel of the importance of such kind of programs which is going to be held today. When you are meeting people like Nalin, who is also from Delhi, again from Delhi College, NSUT, an engineer working in the technology-based startup, and he has proved a good kind of, again, the kind of, the interest area of most of the youth today, that is in gaming. And he's running a successful startup. So when you meet such kind of people, when you understand how they have become successful, that gives an inspiration and that also guide you in terms of how to do that. One thing I would like to say, never give up like me.
Otherwise, you will become an employee of some company. You should work on your idea. Whenever you think anything, I'll just, if you just permit me, Ambika, to speak in Hindi because it's also a national day. तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं हिंदी में बात करूं, और हिंदी में आप थोड़ा सा दिल की बात ज्यादा दिल से करते हैं और दिल तक पहुंच भी पाते हैं। एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा क्योंकि नलिन जी की बातें बहुत अच्छी होंगी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगी। खास तौर से आप बच्चों के लिए आपने रजिस्टर भी किया, इनका नाम सुन के ये गपशप है, तो गपशप तो हमेशा इनफॉर्मल होनी चाहिए। अंग्रेजी में आप फॉर्मल हो जाते हैं थोड़ा सा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों, अगर आपने ये सोचा, कुछ भी आपने ये सोचा कि मैं ये बन सकता हूँ, या आपने ये देखा कि नलिन जी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मैं सोचता हूँ, मैं भी ऐसा सोच सकता हूँ, या आपने सोचा कोई भी ऐसा जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है, या आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैंने NSUT से इंजीनियरिंग नहीं की, या मैंने IIT से कोई प्रोग्राम नहीं किया, या मैंने IIM अहमदाबाद से अंबिका की जगह की तरह कोई MBA नहीं किया। इससे कुछ नहीं होता। सिर्फ आप में काम करने की चाहत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, और एक जो सबसे अहम चीज़ है वो है नेवर गिव अप अप्रोच। किसी भी हालत में, किन्हीं भी हालात में, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई चीज़ शुरू करें और आपको बहुत स्मूथ राइड मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमेशा एक अप्स एंड डाउन्स की जर्नी होती है एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए ये कहना कि उसने कर लिया मैं नहीं कर सकता, या मैं कैसे करूं, इसको नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, आपके पास जो अच्छा सॉल्यूशन है किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का, वो टेक्नोलॉजिकल हो, वो जनरल हो, या इवन कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगती हो कि ये एक बहुत बड़ी किसी मास की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो आपके पास राइट आइडिया। आपको सिर्फ समझना है इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए अंबिका जी बैठी हैं। डाइस DSU का एक जो इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर है, वो आपकी मदद करने के लिए बैठा है। नलिन जी जैसे मेंटोर्स आपके पास मौजूद हैं। तो इससे अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान हाईएस्ट रेट पर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में आगे बढ़ रहा है। सेम एज विद यूनिकॉर्न्स की अगर हम बात करें, तो मुझे तो आज पता चला कि गजल और चीता जो है वो मैंने तो जूम में ही देखे थे, वैसे कभी वहाँ तो देखे नहीं, लेकिन अभी यहाँ हम स्टार्टअप के लाइन में भी देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो सपोर्ट करने में लगे। तो इससे अच्छा टाइम नहीं मिल सकता। मुझे इसलिए मैं बात कह रहा था कि मैं 30 साल पहले की दिन याद आती कि काश आज वाला एनवायरनमेंट अगर जब होता तो मैं भी शायद यूनिकॉर्न होता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप अपना कोई भी मौका जाने ना दें। आप कोई आपके पास आइडिया है, आप उसको फौरन इम्प्लीमेंट करें, खूब मेहनत से काम करें। और देखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। छोटे रास्ते ना ढूंढें, शॉर्टकट्स ना ढूंढें, मेहनत करें, कोशिश करें। और हमेशा एक बात दिमाग में रखें कि आपका आइडिया इस सोसाइटी को कैसे सर्व करेगा, आपका ये आइडिया नेशन को कैसे सर्व करेगा। जाहिर है वो आपको तो सर्व करेगा ही, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में नेशन रहना चाहिए, नेशन फर्स्ट, और सोसाइटी रहनी चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे तो आप अपने आप कामयाब हो जाएंगे। आपका स्टार्टअप को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ उस पैशन की ज़रूरत है, जद्दोजहद की ज़रूरत है, और कभी भी कहते हैं ना, हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आप अपना प्लान चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन इस जर्नी को कभी भी छोड़ के, घबरा के कोई और काम ना करना शुरू करें। और हमेशा मेंटर्स के टच में रहें, कोशिश करें। आज जैसा इन्वायरमेंट, आज जैसा इकोसिस्टम, आज जैसा हिंदुस्तान में जितनी स्कीमें हैं खासतौर से स्टार्टअप को लेकर, मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी इतनी अच्छी स्कीमें रही होंगी। ये आपको हमेशा मदद करेगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ नलिन सवारा जी का कि उन्होंने अपना समय निकाला, और अंबिका का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आप सबको नेशनल स्टार्टअप डे की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for sharing some important lessons. I like the one on never give up, and I think DSU students should hopefully embrace that and become successful entrepreneurs. With this, then, I'd like to turn over to Mr. Nalin Savara. एक छोटा सा introduction उनके बारे में. As sir had said, उन्होंने BE किया है computer engineering में from NSUT.
उसके बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ काम किया था 2 साल के लिए, एंड देन ही वर्क फॉर अनदर गेमिंग इंजन टेक कंपनी फॉर अनदर ईयर. आई थिंक दैट्स वेयर सर फाउंड हिज पैशन फॉर गेमिंग. एंड 2002 में उन्होंने अपनी ओन कंपनी लॉन्च करी थी, डार्क सन टेक. ही इज अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हु हैज कम अप विद मेनी अवार्ड विनिंग गेम्स. उनके 20 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं. सो वी आर वेरी प्राउड टू हैव हिम हियर विद अस टुडे. एंड वी आर होपिंग कि सर के एंटरप्रेन्योरल जर्नी से हम सब कुछ सीख पाएंगे. सो ओवर टू मिस्टर नलिन नाउ. थैंक यू. Hey people, it's really nice to be here, and it's amazing to see India is celebrating its National Startup Day today. I remember in 2016, I was watching on TV the live stream of Prime Minister Modi ji and various entrepreneurs from across the world in the launch of Startup India, and it's just great. मैं ये जो टॉक है, पहले मैं सोच रहा था कि मैं किस प्रकार अपनी कहानी बताऊं, पर फिर मैंने सोचा कि ये मेरी कहानी के बारे में नहीं, बल्कि आप लोगों के बारे में है, आप जो दर्शक हैं, जो मुझे सुन रहे हैं. और मैंने सोचा कि अपनी कहानी चाहे मैं बताऊं या अपनी कहानी के कुछ किस्से बताऊं, ये उससे ज्यादा ये जरूरी है कि मैं आप तक कुछ चीजें लाऊं जो मैंने अपने सफर में सीखी, और ऐसी सीखें साझा करूं आप सभी के साथ, जिनसे जो आप सभी के लिए लाभदायक हो, आप सभी को कुछ प्रेरणा मिले, या आप सभी को कुछ आइडियाज आपके दिल में जागरूक हो. सो इसलिए मैं शुरू करता हूं. मैं NSIT से 1999 में पास आउट किया था, और उस साल में भारत पाकिस्तान का करगिल युद्ध चल रहा था. हमारे सभी के दिलों में एक मतलब देशभक्ति, देश प्रेम की आग थी. और उस वक्त मोबाइल रेवोल्यूशन नहीं था. दुनिया ऐसी थी कि अगर किसी को पता करना है कि ये वाला कॉलेज अच्छा है या बुरा, तो उसको अपने जानकारों से पता करना पड़ेगा. पूछेगा कि कोई मेरे रिश्तेदारों में है जिसको इसके बारे में पता है, कोई मेरे यार दोस्तों में है जो इसके बारे में बता सकता है, कोई बड़े बुजुर्गों में है. तो उस जमाने के कई साल बाद इंटरनेट बिल्कुल भारी तरह से फैला, मोबाइल्स सबके हाथ में आए, और आज जो भारत है वो उस भारत से बहुत अलग है जिस भारत में मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की थी, और जिस भारत में मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी. और जैसे कि खान साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आज के दिन जो आप लोगों के पास मौके हैं, जो चीजें आप कर सकते हो, भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा वक्त ना था कि इतने सारे लोगों के पास इतनी सारी चीजें करने की क्षमता हो, और इस किस्म की टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो. सो मैं शुरू करता हूं. मैंने अपनी कंपनी 2002 में शुरू की थी, और 2002 से लेके 2012 तक हमारा एक स्ट्रगल टाइम था कि हम बस ये सोचते थे कि किस प्रकार हम महीने का गुजारा करें. अगर किसी की तनख्वाहें देनी होती थी तो हम सोचते थे कि क्या हम अगले महीने की तनख्वाहें दे पाएंगे या नहीं. हमने कई किस्म के प्रोजेक्ट किए, छोटे बड़े, और पर फिर भी जिसको कहते हो कि एक हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस थी. 2012 में हमने कई प्रोडक्ट्स बनाए, इंटरनेट प्रोडक्ट्स. उनमें गेमें थी हमारी, पर उसके साथ साथ कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी थे, और नोकिया के ज़माना था. और कुछ ही महीनों में हमारे मिलियन डाउनलोड्स आए, कुछ ही और महीनों में हमारे 5 मिलियन डाउनलोड्स आए. और एक दिन ऐसा आया कि मैं बैंक गया और सोच रहा था कि मेरे बैंक अकाउंट में 10, 12, 13 हज़ार रुपये होंगे कुछ, और कुछ मैंने चेक दिया कि इस चेक की जगह कैश दे दो मुझको. और कैश लेने के बाद मैंने उस पर्ची पे देखा कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, और मैं अचंभित हो गया क्योंकि अभी भी एक और कई जीरोस थे उसके सामने. और फिर मुझे अचानक एहसास हुआ कि बैंक अकाउंट में हकीकत में 10,000 के आसपास नहीं बल्कि 10 लाख रुपए आ गए थे पिछले 2 या 2.5 महीनों में, क्योंकि हमारी गेम हिट थी, उसमें हम एड्स दिखा रहे थे, और इतनी जल्दी इतने सारे डाउनलोड्स और इतने सारे एड इंप्रेशंस और पैसे. और फिर मुझे लगा 2012 सितंबर या अक्टूबर के आसपास कि अब अपनी स्टार्टअप के सफर में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम फील कर सकते हैं कि हम थोड़ी हम कामयाबी चख रहे हैं. और उसके बाद काफी अप्स एंड डाउन्स आए. अभी भी हम
काफी हद तक स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी अपने सफर की, हम सोचते थे कि भारत को, और भारत को ही नहीं बल्कि दिल्ली को दुनिया के नक्शे में लाएंगे और लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और कोई देखेगा और कहेगा कि ये प्रोडक्ट दिल्ली में बना है। जिस प्रकार आज से कई साल पहले एक गेम होती थी एंग्री बर्ड्स, तो एंग्री बर्ड गेम फिनलैंड की बनी थी और शायद उस गेम के कारण पहली बार फिनलैंड और फिनलैंड के एक शहर हेलसिंकी का नाम पहली बार सुर्खियों में आया था। सो हम भी ऐसी इरादे, ऐसी हसरतें लेके अपना स्टार्टअप शुरू करने चले थे और 2012 में हमने पहली बार एक बड़ी कामयाबी देखी और उसके बाद हम कई चीजें कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया है, क्योंकि हम अभी भी एक बहुत छोटी कंपनी है, पर हम छोटे हैं अपनी चॉइस के कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट बनाना है तो फोकस बहुत जरूरी है। और मैं सॉफ्टवेयर की फील्ड का आदमी हूँ। सॉफ्टवेयर की फील्ड से संबंधित काफी काफी कुछ बोल सकता हूँ, काफी कुछ जानता हूँ। कई किताबों में भी मैं सह लेखक रह चुका हूँ। पर क्योंकि ये टॉक आप लोगों के लिए है जो कि स्टूडेंट्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हो, इसलिए मैं कुछ उदाहरण साझा करूंगा आप लोगों के साथ और कुछ सबक जो उन उदाहरणों से सीख सकते हैं, या कुछ सबक जो कि मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए अपनी स्टार्टअप जर्नी में कामदायक रहेंगे। सो सबसे पहले मैं एक इंग्लिश में लाइन है, बायस फॉर एक्शन और रिफ्यूजल टू स्टॉप, कि आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो और रुको ना। ऐसा ऐसा हो सकता है कि कोई लकीर का फकीर किस्म का आदमी कहे कि अरे भैया आप सोच के तो चले थे ये, अब आप ये क्या कर रहे हो, अब आप ये क्या कर रहे हो, अब आप ये क्या कर रहे हो। पर वक्त का पहिया सिर्फ एक दिशा में चलता है और सिर्फ आगे बढ़ता है, वक्त के पहियों को कोई उल्टा नहीं घुमा सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ कुछ ट्राई करते रहो, कुछ कुछ सीखते रहो, कुछ कुछ जानते रहो। और इसमें मैं कुछ और चीजें आपको बोलूंगा कि हिंदी में एक कहावत है या एक लोकोक्ति है, पूछने में कोई हर्ज नहीं। तो अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो आप सीखने की कोशिश करो। आपको काफी बार ऐसा लगेगा कि आप एक चट्टान के या एक दीवार के सामने खड़े हो और आपका आगे रास्ता जाम है। पर हकीकत में ये होता है कि अगर आप सवाल पूछें, अगर आप, और सवाल हमेशा सिर्फ किसी गुरु, किसी मेंटर, किसी इंसान से ही नहीं पूछते, बल्कि सवाल पूछने का मतलब कि आप रिसर्च करो, आप जानकारी पाने और प्राप्त करने की कोशिश करो। और कुछ भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हो। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप एक बार उस पथ पे चलने लगे तो आपको एहसास होगा कि इसमें जहां आपने सोचा था कि 2 महीने लगेंगे, वहां पे 2 साल या 20 साल भी लग सकते हैं। पर उसके बाद फिर ये आपका फैसला है, आपका निर्णय है कि आप किस हद तक उस पथ पे आगे चलना चाहते हैं और किस हद तक आप उस पथ के इर्द गिर्द और दिशाएं ढूंढते हो, या और जल्दी पाने वाले लक्ष्य आपको मिलते हैं जिसके द्वारा आप जल्दी अपने पथ पे कुछ और कहीं और कामयाबी ढूंढ सको। दूसरी बात है कि एक कहावत है, बात करने से ही बात बनती है। सो अगर आपकी एक सोच है, अगर आपका कोई आइडिया है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस आइडिया को दुनिया में ट्राई करें। ये जरूरी नहीं है कि आप दुनिया के सामने जाके उस पूरे आइडिया को किसी के कानों पे बोलो या किसी को भाषण में बताओ, पर यह बहुत जरूरी है कि आप मार्केट में जाओ, मार्केट में बात करो, मार्केट से पूछो कि मार्केट को क्या चाहिए, आपके हो सके जो ग्राहक हैं उनको क्या चाहिए, और आप किस तरीके से उस आइडिया को मतलब हकीकत में बदल सकते हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि अरे भाई जो मैंने बात सोची है, ये काम तो अभी तो सर्दी का मौसम है, ये काम तो सिर्फ गर्मी में शुरू हो सकता है, और फिर वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं या कुछ और करते हैं। सो हर दिन, हर हर घंटा, हर मिनट, हर पल आपके लिए ग्रो करने का, कुछ सीखने का मौका हो सकता है, और आपको हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात पे मैं आपको ये भी कहूंगा कि इंग्लिश में एक कहावत है दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मैन हु डज नॉट रीड एंड द मैन हु कैन नॉट रीड। सो अगर आप पढ़ सकते हो, चाहे आप बहुत सिंपल लेवल की भी किताबें पढ़ सकते हो, पर आप पढ़ते नहीं हो, तो आप में और किसी ऐसे इंसान में जिसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है
कोई फर्क नहीं है। सो हमेशा आप कुछ पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए, कुछ करते रहिए, और उससे हमेशा 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 आप किसी ना किसी दिशा में तो आगे बढ़ेंगे। और आपको लगेगा कि इसमें स्टार्टअप से संबंधित क्या है या इसमें क्या महान बात है, पर हकीकत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेल कर जाते हैं, जो अपने आइडियाज या अपनी चीज से गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि वो मुद्दे की गहराई में कभी घुस ना पाए। और मुद्दे की गहराई में इसलिए नहीं घुस पाए क्योंकि किसी ने उनके सामने आके उनके मुंह में ज्ञान के निवाले नहीं डाले, जिनसे उनके आइडियाज फायर अप हों, या जो उनके दिमाग में बीज की तरह बने नए आइडियाज के लिए। सो आप जब तक एक्सप्लोर कर रहे हो, जब तक आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, आप हमेशा आगे बढ़ रहे हो। ये मत सोचिए कि सिर्फ जो आपने सोचा है आपका अंतिम लक्ष्य, उसकी तरफ डायरेक्ट दौड़ने से ही आप आगे बढ़ रहे हो, बल्कि काफी कुछ आप कर सकते हो अपने आप को बनाने, सुधारने, बढ़ाने के लिए, जिसके द्वारा आप कुछ सीख सकते हो, कुछ कर सकते हो, और अपने लक्ष्य से ज्यादा करीब आ सकते हो। दूसरी बात ये है जो मैं आपके सामने रखूंगा कि कस्टमर्स फर्स्ट। एक कहावत है जो कि कुछ लोग कहते हैं गांधी जी ने कही और कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने नहीं कही, बट जिसमें मैं बहुत भरोसा रखता हूं वो है द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कि जो ग्राहक है वो अपनी जगह हमेशा सही है, इसलिए क्योंकि हर एक इंसान वही करेगा जो उसको सही लगता है। तो अगर आपकी किसी मार्केट पे नजर है, कोई ग्राहक वर्ग है जिसको आप अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, तो आपको दुनिया अपने नजरिए से नहीं बल्कि अपने ग्राहक वर्ग और अपने ग्राहकों की दृष्टिकोण से देखनी पड़ेगी कि आपका ग्राहक क्या चाहता है, उसकी दुनिया में क्या परेशानियां हैं और वो क्या करना चाहता है। और चाहे आप किसी को लाख बार कह दो कि भाई तुम्हारा दुनिया देखने का नजरिया गलत है, हम तो ऐसे देखते हैं, हम तो ये सप्लाई करेंगे, पर इंसान अपनी दर्द, अपनी जरूरत और अपनी हसरतों के मुताबिक वही करता है जो उसको सही लगता है। इसलिए बहुत 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 जरूरी है कि आप अपने ग्राहक वर्ग को समझें और उसके मुताबिक, उसकी भाषा में उससे बात करें, उसके मुताबिक उनके तरीके की सर्विसेज उनको डिलीवर करें और उनको खुश करें। उदाहरण के तौर पे आपने जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा होगा शायद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा काम करती हैं गूगल शीट्स भी, जो कि आप अगर गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स, गूगल ड्राइव इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखे होंगे, जिसपे बिजनेस की कैलकुलेशंस करने के लिए काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। पर शायद काफी लोगों को ये नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पहले भी एक स्प्रेडशीट थी आईबीएम द्वारा बनाई गई, लोटस 123। और लोटस 123 जो था वो आईबीएम के एक्विजिशन से पहले एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी, पर वो कंपनी इसलिए डूबी, इसलिए आईबीएम को बिकी, क्योंकि वो सोचते थे कि स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होती है और इसलिए कैलकुलेशंस को फास्ट करना सबसे जरूरी बात है। पर जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बना रहा था, तो जो बंदा उस एक्सेल बनाने वाले एफर्ट को लीड कर रहा था, तो उसने जाके ग्राहकों से बात की, बहुत सारे ग्राहकों से बात की। उसको एहसास हुआ कि हालांकि 10% ग्राहक आपके अकाउंटेंट लोग हैं, कंपनियां हैं जो कि अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल करती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों, दफ्तरों, दुकानों में इस्तेमाल करते हैं। और उनसे जब पूछा कि आप क्या करते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, तो उसको पता चला कि लोग तो इससे लिस्ट बनाते हैं। आपके 90% ग्राहक जो थे उस सॉफ्टवेयर के, वो लिस्ट बनाते हैं उससे। और अगर 10 काम करने हैं तो वो लिखेंगे, अगर 10 चीजें खरीदनी है तो उसमें लिखेंगे, अगर किसी इवेंट में 10 लोग आए हैं या बुलाने हैं तो उस स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करके लिखेंगे। सो उस पॉइंट पे जो अगला वर्जन निकला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, उसमें बहुत सारी ऐसे फंक्शंस और फीचर्स थे जो कि लिस्ट मैनेजमेंट, लिस्ट सॉर्टिंग और लिस्ट्स में डेटा सर्च और ऑर्गेनाइज करने के लिए कामदायक, लाभदायक थे। जबकि जो लोटस
123 था, जो कि अल्टीमेटली कंपनी IBM को बिक गई। उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए बहुत सारा और काम किया, पर उन्होंने कभी ग्राहकों से नहीं पूछा कि आप क्या करते हो इससे। नहीं तो उनको पता चलता कि 90% या 95% काम जो उससे होता है वो कैलकुलेशंस का नहीं होता, बल्कि लिस्ट्स बनाने और लिस्ट मैनेज करने का होता है। उसी प्रकार एक कहानी है कि किस प्रकार जब गूगल नया था सर्च इंजन, तो गूगल के का प्रतियोगी एक था जो गूगल के साथ प्रतियोगिता में था, याहू। आज के दिन याहू को हम सर्च इंजन के रूप में सोचते ही नहीं, पर याहू जो था वो सर्च इंजन से ज्यादा न्यूज पोर्टल बनना चाहता था। जिस प्रकार गूगल में आप क्लिक करते हैं और गूगल न्यूज देख सकते हैं, उस प्रकार याहू ने अपने होम पेज जहां पे उनका सर्च होता है वहां पे सारी न्यूज भर दी और बहुत सारी ऑप्शंस दिए कि आप किस प्रकार डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी खबरें आपको दिखेंगी। और जब गूगल आया, जिसका होम पेज बिल्कुल ब्लैंक था, सिर्फ एक सर्च का डिब्बा था जिसमें आप सर्च वर्ड टाइप करो और गूगल कर लो, तो झट से लोग गूगल की तरफ आकर्षित हो गए। गूगल ने और भी काफी कुछ किया अपनी सर्च टेक्नोलॉजी को अच्छा करने के लिए, एड्स दिखाने के लिए इत्यादि। पर गूगल की सबसे बड़ी खासियत जब वो मार्केट में नया नया उतरा था, वो यही थी कि वो सिर्फ सर्च पे फोकस्ड था और सर्च को ही सुधारे, सर्च को ही अच्छा बनाए और एडवर्टाइजमेंट भी दिखाए। तो आप गूगल पे अगर एड देखेंगे तो लिखा होता है एड, ये आपको पता चलता है कि ये एडवर्टाइजमेंट है और ये सर्च रिजल्ट है। गूगल की खूबी, गूगल की खासियत यही थी कि जिस प्रकार कई न्यूज चैनल पैसे लेके न्यूज दिखाते हैं, उसी प्रकार उस जमाने में सर्च इंजन भी पैसे लेके सर्च रिजल्ट दिखाते। पर गूगल की खूबी थी कि कोई उनको जितने भी पैसे ऑफर कर ले, उनका उनके सर्च रिजल्ट बिकाऊ नहीं थे। और आज तक उनकी ये खूबी है, वो एड्स दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बेचते हैं, पर जहां भी एक एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन होता है वहां पे लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट। सो बस आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो फोकस होता है, जो कस्टमर ओरिएंटेडनेस होती है, जो ग्राहक को खुश करने वाली बात होती है, वो एक कंपनी को बहुत 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 दूर ले जाती है। आपको एक आखिरी उदाहरण दूंगा इसका, क्योंकि मेरी राय में ग्राहक पे फोकस्ड होना सबसे सबसे महत्वपूर्ण काम है किसी भी बिजनेस का, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे पुराना बिजनेस हो। अगर बिजनेस अपने ग्राहकों से नाता संपर्क तोड़ बैठे या खो बैठे वो नाता जो ग्राहक के साथ उसका रहता है, तो आप कहो कि उस वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा धंधा। चाहे वो कोई सड़क के किनारे भुट्टा बेचने वाली या मोमो बेचने वाली दुकान हो, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो हार्डवेयर की शॉप हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे वो इंटरनेट प्रोडक्ट हो। सो ये सबसे जरूरी चीज है कि आप हमेशा मार्केट से पूछो, मार्केट को समझने की कोशिश करो, उस दुनिया में कदम रखो जहां पे आप कदम नहीं भी रख सकते, पढ़ पढ़ के उसके बारे में सीख के, उसके बारे में रिसर्च करके। पर हमेशा आप ये समझने की कोशिश करो कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं और जो कस्टमर को चाहिए उसी तरीके से आप काम करो। तीसरी चीज मैं आपको बोलूंगा कि लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि कम्युनिकेशन से भी इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, यानी कि कस्टमर का या सबका भरोसा और एतबार। अगर लोग आपके धंधे पे, आप पे एतबार ना करें, तो क्यों वो आपकी बात सुनेंगे? अगर कोई आप पे भरोसा नहीं करता या आपको पसंद नहीं करता और आप उससे कुछ सवाल पूछो, तो क्यों वो आपके सवाल का ईमानदार जवाब देगा? इसका ये मतलब नहीं कि आप हर एक के सामने झुको और हर एक को खुश करने की कोशिश करो, पर इसका ये मतलब जरूरी है कि अ, अ, चाहे आप अपने एम्प्लॉयज से डील कर रहे हो या टीम मेंबर से डील कर रहे हो, चाहे आप अपने लिए काम करने वालों से डील कर रहे हो, चाहे आप अपने ग्राहकों से डील कर रहे हो, कोशिश करो कि हर एक का भरोसा कमाओ, हर एक की नजरों में इज्जत कमाओ और हर एक को समझने और सीधे मुंह जवाब देने की कोशिश करो। पुरानी फिल्में हम देखते हैं जहां पे कोई बहुत 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 बड़ा आदमी होता है जो कहता है कि अरे, इस जैसे हमारे पास लाख लोग आते हैं, इसको क्या जवाब दें। पर ये जो सोच है ना राजाओं वाली, या वो सोच
बिजनेस की दुनिया में नहीं चलती, बल्कि बिजनेस की दुनिया में विनम्रता और ग्राहक को सेंटर में रखने और ग्राहक के इर्द गिर्द सब कुछ करने वाली सोच ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ग्राहक के साथ बातचीत से भी ये जरूरी है कि ग्राहक आप पे भरोसा करे और आप आपको बिलीव करे। तीसरी बात मैं आपको ये कहूंगा कि आप समझें कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। अब लक्ष्य का सिर्फ ये मतलब नहीं कि अर्जुन से सीखो और सिर्फ मछली की आंख पे नजर रखो, पर लक्ष्य का ये भी मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, तो और आप एक काम में बहुत अच्छे हो और एक कंपनी आपको रिवॉर्ड कर रही है और आप उस काम में चमक सकते हो, पर आपके ऊपर मान लो कोई प्रेशर है कि आप जाओ बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, या आपको लगता है कि अरे ये सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अब मेरे ऊपर मुझे भी, तो कभी भी आप इस मुझे भी या भेड़चाल वाली सोच में मत पड़िए, बल्कि आप खुद खुद के लिए समझने की कोशिश करिए कि आप क्या चाहते हैं, किन चीजों में अच्छे हैं और आपको क्या फीडबैक मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं इंजीनियरिंग में घुसने से पहले मैंने 1 साल ड्रॉप किया था और मैं किसी कॉलेज से बीएससी कर रहा था 1 साल, और फिर इंजीनियरिंग में घुसा। तो इंजीनियरिंग में आने के बाद मेरी बहुत मंशा थी कि मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करूं और क्विजिंग में पार्टिसिपेट करूं। तो क्विजेज में मैं पार्टिसिपेट करता था, डिबेट्स में भी कुछ हद तक मैंने पार्टिसिपेट किया अपने फाइनल ईयर में। और एक 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 डिबेट था जहां पे मैं अच्छा बोला पर कोई और जीता। और मैंने फिर उस प्रोफेसर साहब से पूछा, उस कॉलेज के, एक दिल्ली के बहुत ही नामी कॉलेज के फेस्टिवल में था ये डिबेट, कि सर मैं क्या, आप क्या लगता है कि मैं कैसे ज्यादा सुधर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा जितनी तूने बातें कही, तूने 5 बातें कही और हर एक बात तूने सॉलिड कही, पर आप समझो बेटा कि जो डिबेटिंग होती है वो एक, उसमें एक सोच होती है, उसमें एक तरीका होता है जिससे डिबेट जीता जाता है। और जो बच्चे डिबेट जीतते हैं वो बहसबाज बच्चे होते हैं जो 1 या 2 पॉइंट बनाते हैं और उस पॉइंट को आगे तक पुश करते हैं, इसके बजाय कि 5 अलग अलग पहलुओं से एक मैटर को देखें। मैंने कहा, तो सर आप क्या सुझाव है कि क्या मैं अपना बात कहने का तरीका बदलूं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि डिबेटिंग आप उन लोगों पे छोड़ दो जो एमबीए करना चाहते हैं, जो आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। आपको अपने लिए आप एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे पास जॉब थी, मुझे ठीक से ये भी मालूम नहीं था कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। सो मैंने कहा, सर इसका क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि बेटे आप किसी दिन, चाहे आज नहीं, चाहे बहुत साल बाद, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में 1 या 2 मुद्दे उठा के बहस करने की क्षमता नहीं जीतती, बल्कि एक मुद्दे के 5 पहलू या 8 पहलू या जितने भी पहलू हैं, समझने, देखने और कहने की क्षमता जीतती है। तो उससे पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं कुछ शुरू करूंगा, और ऐसा नहीं है कि उनके एक कहने से ही मेरा दृष्टिकोण बदल गया। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि क्योंकि मैंने लोगों से बात की, मैंने कुछ देखा, सीखा, जाना, तो मुझे एहसास हुआ कि हालांकि एक स्पीच या डिबेट में एक तरीके का से बात कहने का तरीका कामयाब रहता है, पर और भी राह हैं, और भी दिशाएं हैं। और कई साल बाद जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, कुछ कंपनी वंपनी स्टार्ट की, और मैंने देखे लोग जो किसी मुद्दे के 1 या 2 पहलू पकड़ के उन पे इतनी जोर शोर से बात करते हैं कि अगला हट जाए उनके सामने से और चुप हो जाए। तो मुझे इन प्रोफेसर साहब की बात याद आई और मैंने सोचा कि अ, भगवान का शुक्र है कि मैं गया और मैंने अपनी दुनिया देखने की कोशिश की और मैंने कुछ जाना। उसी प्रकार आप सभी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हो। आप में से कुछ लोग हैं जो बिजनेस फैमिली से हो, कि कह लो आपकी फादर की शॉप है या कोई बिजनेस है। कुछ लोग हो जो सर्विस फैमिली से हो, कि आपके पिता, आपके माता पिता कहीं पे जॉब करते हैं। उनको लगता है कि बेटा आप ये करो, आपको भी लगता है कि देखो कितनी सारी किस्म की स्टार्टअप निकल रही है, मैं भी कुछ शुरू करूं।
और कोई आप पे रोक नहीं है कुछ शुरू करने से। पर ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी दुनिया को देखो, परखो और चीजें करो और लोगों का फीडबैक लो, और फिर खुद से पूछो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, और आप में क्या क्या करने की क्षमता है, और उन क्षमताओं के मुताबिक और अपने सपनों को साकार बनाने की कोशिश करो। सोचो कि आप क्या चाहते हो जिंदगी में, और उस चीज की बेसिस पे आप कुछ करो। काफी लोग हैं जो कहते हैं कि अरे हम तो ये चाहते हैं, पर ये तो सब लोग चाहते हैं और सब लोगों को मिल भी जाता है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचने समझने की क्या जरूरत है। पर मैं आपको अपने तजुर्बे की आधार पे यही राय दूंगा कि अपने आप को समझो, दुनिया को समझो, और दुनिया में कुछ करने की कोशिश करो, और हमेशा कुछ करते रहो। बस यही मेरा सुझाव है। और जय भारत, जय हिंद। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो बहुत खुशी से मैं जवाब दूंगा। इंग्लिश में भी पूछ सकते हो, हिंदी में भी पूछ सकते हो, चाहो तो सॉफ्टवेयर फील्ड से संबंधित बिल्कुल टेक्निकल सवाल भी पूछ सकते हो, और हर सवाल का मैं जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा अपनी जानकारी के मुताबिक। Thank you, Nalin. We're just looking through the YouTube comments to see what questions students are throwing up. But in the meantime, thank you very much. I thought they were very important lessons. Keep experimenting, customers first, build trust, and identify your goals. I hope I got that right. Absolutely. Okay. So thank you. Let me begin by asking you a question, which is, um, ki, one thing we didn't talk about, I know you did say ki, how did you identify कि आपको किस market में अपना product establish करना था? Like, how did you zone in कि gaming is the industry you want to be in? Like, what brought you here? Because I'm guessing passion is one of the most important things an entrepreneur has. So how did you identify कि gaming ही आपका area of interest, expertise सब कुछ है? तो जब मैं स्कूल में था, स्कूल मतलब विद्यालय में था, कॉलेज में नहीं, तो मैं बचपन से ही देखता था कि लोग कुछ कर रहे हैं, पढ़ता था कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर के बारे में, और मुझे बहुत शौक था कि मैं कंप्यूटर्स में बहुत शातिर और बहुत सॉलिड हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में था हमारे जमाने में, उस प्रकार मैं चमकूं उस फील्ड में। और मैं प्रोग्रामिंग बहुत गहराई से सीखता था बचपन से। और जब मैं 12वीं कक्षा में था, 11वीं 12वीं कक्षा में था, तो एक कंपनी थी जो ठेका लेके हमारे स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन देती थी। और उस कंपनी के एक फाउंडर थे, हालांकि एक थोड़ा वृद्ध आदमी था जिसने पैसे डाले थे उस कंपनी के पीछे, पर 4 या 5 यंग लोग थे उस जमाने में जिनकी उम्र लगभग 30 साल थी, जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे थे, और जो कई बार जब उनको टीचर नहीं मिलता था 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए, आके हमें पढ़ाते थे। तो जब मैं कॉलेज इंजीनियरिंग में घुसा, तो यही हमारे सर ने मुझे कहा कि नलिन, मुझे एक इन्वेस्टर मिला है और मैंने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की है जो कि गेम बना रही है, और वो गेम भी बना रही है इंडियन मिथोलॉजी पे, एक ओपन टेरेन गेम कि कमरे में बंद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कर्म भूमि है जिसके ऊपर आप एक योद्धा और एक साधु बन के धनुष बाण से अलग अलग किस्म के सुरों, असुरों, राक्षसों से लड़ोगे। और हम चाहते हैं कि आप भी आओ और हेल्प करो उस बंदे की जो प्रोग्रामर है, कि आप दोनों इकट्ठे उस गेम इंजन की टेक्नोलॉजी बनाओ। तो Nice. मैं अपने कॉलेज में के 3 साल लगभग पार्ट टाइम इनके साथ कुछ कुछ करता रहा, और फिर कॉलेज से पास आउट होने के 2 साल बाद मैं जॉब कर रहा था, और इनसे मुझे कॉल आई कि भाई, जो कंपनी थी जिसमें तुमने काम किया था, जो गेम बना रहे थे, वो करोड़ों की बिक गई है, और आप चाहो तो आप भी आओ, ज्वाइन करो, और आप भी कुछ कर सकते हो। और अगर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं दैट इफ इट्स योर बेबी दैट्स गोइंग टू बी $1 मिलियन बेबी, देन हु बेटर देन यू टू ब्रिंग इट टू मार्केट। तो मैंने फिर अपनी जॉब चेंज की थी, बेंगलोर में काम करता था, दिल्ली आया, उस पेरेंट कंपनी के साथ जिसने इनकी कंपनी खरीदी थी और जो इनकी कंपनी में पैसे डाल रही थी गेम बनाने के लिए, काम किया। 6-7 महीनों में मुझे उस टेक्नोलॉजी टीम का हेड बनाया गया। मैं प्रोग्रामर था, प्रोग्रामर्स की एक टीम थी, और उस वक्त आप कह सकते हैं कि मेरे पास लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस था, इस कंपनी वाला एक्सपीरियंस मिला के, और मैं प्रोग्रामिंग टीम का हेड था। और उसके बाद किसी पॉइंट पे ऐसा हुआ कि वो कंपनी जो थी, जो पेरेंट कंपनी थी, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फार्म इक्विपमेंट
और व्हीकल से रिलेटेड कंपनी थी। तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे चलाई जाए, क्या कल्चर होना चाहिए सॉफ्टवेयर कंपनी का, कि अगर कोई आदमी रात के 2-2 बजे तक काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी तुम अगर ऐसे नियम लगाओगे कि सब लोग 9:30 बजे तक अपना रजिस्टर साइन करें और जो 9:30 के बाद आए उसके आधे दिन की तनख्वाह कटेगी। और मैं टीम हेड कर रहा था और जो लोग थे वो सब बाद में आते और अपने दोस्तों को कहते कि तुम जल्दी आओगे तो मेरी जगह साइन कर दो। और मैं सोचता कि मैं इस टीम को हेड कर रहा हूं, अगर मैं लोगों से ऐसा कराने लगूं तो कितना बुरा होगा। पर Right. उनका एक अपना तरीका था, अपना कल्चर था। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपनी जिंदगी का काफी वक्त इस काम में लगाया है तो कहीं ये ना हो कि खींचातानी में जो चीजें मैंने खड़ी की हैं वो टूट जाएं, लोग छोड़ दें कंपनी और ये प्रोडक्ट भी मर जाए। सो मैंने सोचा कि मैं मतलब कुछ हद तक उस वक्त भी स्टार्टअप का थोड़ा थोड़ा जुनून शुरू सा था। मैंने सोचा कि अगर मैं इस जॉब से हट जाऊं पहले कि ये कंपनी टूटे, और हो सकता है मैं नई जॉब ले लूं, हो सकता है मेरे पिता बिजनेसमैन थे उनके साथ कुछ काम कर लूं, हो सकता है मैं एक कंपनी शुरू कर लूं। तो उस सोच के साथ मैंने वो कंपनी छोड़ी। और उसके बाद जैसे कदम से कदम बढ़ाते गए और कुछ कुछ हमने भी शुरू किया और कुछ कुछ किया हमने। तो ये है कहानी। और क्योंकि मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट भी था और कई साल से मैंने उसमें कुछ काम भी किया है, टेक्नोलॉजी भी बिल्ड की है जो कि मेरी बनाई चीज की बेसिस पे करोड़ों की बिकी है। तो मुझे एक आइडिया था कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ और इसमें मेरे पास कुछ एक्सपर्टीज है। Very nice, very nice. In any entrepreneur's journey, there's always ups and downs. Is there कोई आप ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जहाँ you felt कि I'm going to give up and not do this anymore, and what made you stay on the path? Because we also interact with student teams, and and life of an entrepreneur is difficult. It's energetic and energizing, but it is difficult. So did you ever have any moments ki no, I don't want to do this, or I mean anything around those lines बिल्कुल, that you ever thought about? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपका बहुत शुक्रिया अंबिका जी कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। सो मैं बचपन में गेम खेलता था, टीवी गेम खेलता था, और उसमें एक गेम थी जो हमें अच्छी लगती थी और उसके जैसी हम गेम बना रहे थे। और हम 2.5 साल से उस गेम पे काम कर रहे थे। कह लीजिए मिड 2008 से लेके 2011 तक। और जब तक हमने वो गेम खत्म की, वो उस जमाने के नोकिया सिम्बियन और नोकिया के जावा वाले प्लेटफॉर्म के लिए थी। और उस जमाने में नोकिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेकर होता था। पर हमने हमारी गेम खत्म होने के 6 महीने पहले, जिसपे हम 2 साल से काम कर रहे थे, एक अनाउंसमेंट की नोकिया के उस जमाने के सीईओ ने कि हम सिम्बियन ओएस से हट रहे हैं। और तभी नोकिया के जो फोन थे, नोकिया की जो कंपनी थी, वो टूटने लगी। और भारत में जो उस जमाने में नोकिया के लोग थे, कुछ जिनका काम था कि उनके ऐप स्टोर में एप्स डिसाइड करें, वो उस सोच के बन गए कि जैसे कोई कंज्यूमर गुड्स कंपनी 100 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ देती है, उस प्रकार हम कंपनियां ढूंढेंगे जो हमें 20-20 ऐप डाल सकें हमारे स्टोर में एक झटके से। तो लोग जो ऐप डालते थे तब नोकिया स्टोर पे, तो ऐसी ऐप डालने लगे लोग कि अपने गोल्स मीट करें कि लो 20 ऐप डाल दी, लो 10 ऐप डाल दी। सो हम जैसी कंपनी जो एक प्रोडक्ट पे हमने 2.5 साल काम किया है, शायद 3 साल काम किया है, तो हमारे लिए क्या जगह बचेगी उस जगह में जहां पे लोग 2-2 3-3 महीनों में 20-20 ऐप डाल रहे हैं। तो उस पॉइंट पे हमें लगा कि क्या हमारी मेहनत 2-2.5 साल की 3 साल की मेहनत व्यर्थ गई। और उसके लिए ये मतलब सोल्यूशन हमें ये मिला कि हम ढूंढते रहे, लोगों से बात करते रहे। और ऐसे लोग मिले कि कोई थे जर्नलिस्ट जो मुझसे 12 साल छोटे थे उम्र में। तो इन्होंने कहा कि आप बड़े भाई हो हमारे, और आपको इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है, और आप ये दिशाएं क्यों नहीं ट्राई करते, आपने ट्राई की क्या? तो मैंने कई और दिशाएं ट्राई की। और फाइनली एक मेरे कॉलेज का मेरा सीनियर था, जो कि बहुत टेक्निकल और टेक्नोलॉजी में अच्छा बंदा था, उसने मेरी बात कराई अपने कंपनी के को फाउंडर से, जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ही नहीं थे बल्कि उन्होंने प्रोडक्ट बनाए थे। और ऐसे प्रोडक्ट बनाए थे जो आज तक दिखते हैं विंडोज के हिस्से के रूप में। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये ऐसा चाह रहे हैं तो तुम कुछ ऐसी चीजें बनाओ जिसके मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स आए,
जब नोकिया देखेगी कि तुम कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो वो खुद आके तुमसे बात करेंगे, खुद तुम्हें मौके देंगे। और इस प्रकार मतलब भूल भुलैया और अंधेरे में 1 साल गुजारने के बाद, अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद, हमें मतलब रोशनी के कुछ सुराग मिले, जिसके द्वारा हम उस पॉइंट पे आए जहाँ पे अचानक हमारे बैंक में बहुत सारे पैसे आने लगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गए और एडवर्टाइजमेंट दिखा के बहुत सारे पैसे आने लगे। तो ये एक उदाहरण है ऐसी सिचुएशन का, जहाँ पे हमें लगा कि हम गिव अप करने वाले हैं, पर मतलब ढूंढ के कुछ भगवान की मर्जी से हमारे पास आया मौका। Okay, thank you. I mean, it's nice that you did stay on the course. I guess you had people sort of motivating you on the side too, so that's amazing. One student is asking, sir, how can we know what the mind map will be after exploring our idea slash thought with you? So I guess he's trying to understand perhaps the whole ideation methodology. So Okay. anything there? Yeah, I'll share. See, when somebody is trying to communicate something in a book, the idea of a mind map, or how do you put things together as a process or a sequence of things, is important. But when you are on the ground, you are actually doing things. The question is, what do you want to do and how are you going to do it? Like for example, if there is a market you want to go to so that you can eat some food item that you love, you will even go 10 kilometers for that. On the other hand, if there is something which you are not sure about, which you don't care about, you would not do much for it unless there is either an immediate reward, or unless there is a pressing need for you to do that there and then. So I think it's very important to understand and ask yourself that what are you good at, what do you want to do, and what is it that there is an opportunity for. Like the founders of Zomato, when they were working in a consulting firm, they would get the menus of all the nearby takeaway restaurants. They would scan them and put it on their personal computer. And at lunchtime, people who were ordering food from outside would open that shared folder on this guy's computer. They would look at the menus that this guy had scanned, and they would use that to get the numbers and the menu items and the prices. And ultimately, this became Zomato. And it comes down to what is your passion, what is your interest, and where do you see an opportunity. No such thing as a mind map here. Okay. I think one last question actually on has become very big. So any pointers on how एक छोटा startup जब वो शुरू कर रहा है, how they can how should they go about marketing their products or services? Can you repeat the question? In the beginning, you said XYZ has become very big. I didn't hear that point properly. That was not No, audible. I said, no, I was saying that most startups, especially when they're very small, they struggle with getting new orders, new customers. How do you, what kind of a marketing strategy should one have? How should you expand in terms of expanding your customer base, how you sort of brand yourself? How should young startups think about it? I think the most important thing is to be willing to talk about what you are doing, and being willing to go into and have conversations about it. A lot of people who are trying to start something, they make themselves busy as if they are the officer of some big company, and they say, I don't have time for this, this, and this. But until you have conversations with potential customers, and not just one or two or three, but a diverse set of potential customers, unless you have people you can go and talk to, people you can bounce ideas off, people whom you are willing to listen to, you cannot have a conversation. To give you an example, I was once standing at some hangout spot, and one guy came and asked me, we were talking about technology, and one guy who was not very well dressed came and said कि आप वेबसाइट भी बनाते हो? मैंने कहा हाँ. He said कितने लगेंगे पैसे? I said इतने भी लग सकते हैं, इतने भी लग सकते हैं, इतने भी लग सकते हैं. I said आप बताइए काम क्या है? तो उसने कहा, he said कि उन्होंने कहा कि मेरे किसी रिश्तेदार या जानकार या पड़ोसी की कंपनी है जो एक आइटम ये मैन्युफैक्चर करती है, फैक्ट्री, तो इनकी वेबसाइट बनाई थी, कई चीजें चेंज हो गई हैं, पर वो वेबसाइट वाली कंपनी इनकी हेल्प नहीं कर रही.
तो आप कितने पैसे लोगे? सो मैंने कहा कि भाई साहब ये हम काम आपके लिए फ्री में कर देंगे, मिलवा दो आप हमसे, और हम आप उनको समझा देंगे कि हम कितने पैसे में क्या काम कर सकते हैं। तो अगर उनको हमारी जरूरत हो और लगे कि हम उनका फायदा है हमसे कुछ काम कराने में, तो हम उनका काम कर देंगे। नहीं तो वी आर हैप्पी टू टॉक, और ये छोटा सा काम हम ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा कोई काम नहीं है और कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप अपनी पुरानी वेबसाइट फेंक दो उस चीज के लिए। तो वी दैट गिव अस अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड अ लिंक टू somebody, and we did that work, we did it well, we got much more work from that, and we made a fair amount of money, and we also got references. But if we had thought कि ये बंदा जो हमसे बात कर रहा है, one guy who was talking to me, who was not in my company, who was just a friend, he said कि यार ये मतलब he said कि what is this guy, ये बंदा जो इतना गरीब लग रहा है और ऐसा लगता है कि मजदूरी का काम करता है, इससे तुझे बात करके क्या फायदा होगा? बट मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। मैं बस ये कहता हूँ कि अगर कोई आके हमसे बात कर रहा है तो बात करने से बात बनती है, और अगर हम लोगों की सहायता करने की कोशिश करें, उनका भरोसा कमाने की कोशिश करें, तो कभी ना कभी तो कमाई भी होगी। काफी लोग जो होते हैं वो पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, और अगर आपको सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए तो हम नहीं दे सकते। इस चीज को मैं एक बार अगले 1.5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, इस जवाब को, कि जब मैं बेंगलोर में रहता था तो पता नहीं कहाँ से काफी लोगों को मेरा नंबर मिल गया। तो फोन आते थे कि आपको न्यूज़पेपर चाहिए, आपका क्या एड्रेस है, और आपको कौन सा न्यूज़पेपर चाहिए। तो मैं कहता था कि भाई मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, और मुझे सिर्फ संडे वाले दिन चाहिए। और वो कहते थे अच्छा आपको सातों दिन नहीं चाहिए? मैं कहता था नहीं। और फिर उसके बाद कोई न्यूज़पेपर डिलीवर नहीं करता था। वो सोचते थे कि अगर ये इंसान हफ्ते में सिर्फ एक दिन का न्यूज़पेपर ऑर्डर कर रहा है तो हमें क्या मुनाफा। पर मैं कहूंगा कि अगर कोई नया ओपनिंग, नई लीड, नया कस्टमर आ रहा है, तो अगर तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अगर उसको बेचोगे जो तुम बेच रहे हो उस तरीके से जो वो बेचना चाहता है, तो वो तुमसे और भी काफी कुछ खरीद सकता है, आपके साथ और भी काफी कुछ डीलिंग्स कर सकता है, और काफी और आपके साथ कन्वर्सेशंस हो सकती हैं जिनसे आपको फायदा हो सकता है। सो इस स्टार्टअप के लिए जो कि नए कस्टमर ढूंढ रही है, मैं बस ये कहूंगा दैट फोकस ऑन पीपल, focus on trying to solve people's problems, and you will discover whether that market is right or wrong for you, and how big or small that market really is, instead of trying to prejudge that market and think that ये हमारे लिए बहुत ज्यादा छोटा है या ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। वो काम एक एंटरप्रेन्योर को शोभा नहीं देते मेरी राय में। Okay, thank you. That was nice. That no problem is small, and I sort of like the fact that you're saying that start small and it can become big over time. And I think that's a very important lesson. Sometimes we walk away from opportunities thinking कि ये तो बहुत ही छोटी opportunity है. So I think that's a really interesting, thing that you've pointed out, and it's an important lesson for our students. So thank you very much. Um, Yeah, I'm listening. no, please go ahead. Okay, so if there is one more question you'd like to ask me, I'm happy to answer. And even if there are no questions, all of you who are watching are most welcome to search me on Google. Nalin Savara is my name, NALINSAVARA. You can follow me on Twitter, twitter.com/NALDOTSAV. And you can also add me on LinkedIn, linkedin.com/in/nsnsns. And on Instagram, I'm instagram.com/nalinsav. So even though there are times when I don't post much, I do try to answer every question, or at least respond, even if I say that, sorry, I cannot go into that much detail. So if you are reaching out to me, I would do my level best to try to get back to you. And if there's a channel of communication like email or something where you are writing to me and I don't seem to be responding, it's not that I'm avoiding you or running away, but that maybe the message is not reaching me, because there are certain email IDs where I have over 2 million unread email messages. So, I mean, that's all I'll say. Ambika, you can ask one final question if you can, just so that I wrap it up on the note that I'm actually doing my best to answer every question that comes. There are very few product-based Indian companies in software. Why do you think that's the case in India? I think in every domain
there are different reasons why there are a product company or why there are not a product company. So it really depends on the specific domain within which we are talking of. So in financial accounting, for example, you have a company called Tally and you have a company called Busy, which have literally million plus paying customers each. There are other spaces where Indians are hesitant to spend on a product, but when they are in communication with a person or a team of people and they think the team of people is good, they will happily pay for the service. So it's like very few of you people will have bought an app over the app store, but if you are getting your mobile repaired, you will pay. If you are doing something else, you will pay. So a lot of it depends on the market's own trends and buying patterns as much as it is about the passion for product. Of course, it is important for all of us to try to build product companies, but I'm just sharing an observation about the Indian market. Okay, thank you. Thank you. I think that helps. Thank you very much. With that, we'd like to really thank you for your time today, Nalin. All the details you shared regarding your social media, etc., I will share with the students. And if they have questions, वो आपको email कर लेंगे या फिर not email but LinkedIn पे message drop कर देंगे या फिर let's see what social media channel they use. नहीं, But आप thank you so much. Twitter, Instagram, LinkedIn Okay. कुछ भी कर सकते हैं. मैं ठीक है. कोशिश करूंगा कि हर मैसेज को आंसर करूं. Thank you. Okay, thank you so much, Mr. Nalin. Have a nice day. Thank you for your time. Thank you. Okay.